Soil sampling. Soil sampling is one of the most important steps in any soil testing program. A non-representative sample may vitiate the entire results. Soils vary from place to place. In view of this, effort should be made to take the samples in such a way that it is fully representative of the field. Selection of a sampling unit. A visual survey of the field should precede the actual sampling. Note the variation in slope, color, texture, management, and cropping pattern by traversing the field. Demarcate the field into uniform portions, each of which must be sampled separately. Never collect the samples in line. Instead, sampling at several locations in a zigzag pattern ensures homogeneity. Precautions: do not sample unusual area like marshy, old path, old channel, old bunds, area near the tree, and site of previous compost piles. Avoid any type of contamination at all stages. Soil samples should never be kept in the store along with fertilizer materials and detergents. Where crops have been planted in rows, collect samples from the middle of the rows so as to avoid the area where fertilizer has been placed. Sampling procedure. Scrape away surface litter with the help of a broom. First, dig a V-shaped cut up to 15 to 20 centimeters using a plow and remove rest of the soil. Samples are taken with the help of a soil sampler auger from plow depth and collected in the bucket. For shallow-rooted crops, collect samples up to 15 to 20 centimeters depth. For deep-rooted crops, collect samples up to 30 centimeters depth. Repeat the procedure for collecting the soil from selected spots on the field. Transfer the total collected samples from the bucket on a piece of plain sheet and mix thoroughly. Spread the soil evenly and divide it into 4 quarters. Reject the 2 opposite quarters and mix the rest of the soil again. Repeat the process till left with about half kg of the soil. Collect it and put it in a clean cloth bag. The bag used for sampling must always be clean and free from any contamination. इसमें सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है पीएच। पीएच मेजर करने के लिए ये मेनू बटन दबाएं। मेनू में आपको 10 पैरामीटर्स दिखाई देंगे और उसमें जो आपका पैरामीटर है पीएच, उस पे ऑलरेडी ये एरो से वो सेलेक्टेड है। ये सेलेक्ट होने के बाद इसमें एंटर प्रेस करें
उसके बाद आएगा सेलेक्ट द फार्मर। फार्मर उस जगह पे भी आप एंटर करेंगे। पीएच के लिए हम ये प्रॉब यूज करेंगे और उसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। पीएच इलेक्ट्रोड लगाने के बाद सबसे पहले इलेक्ट्रोड को 2 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो कि बॉटल नंबर 1 और 2 में दिया गया है उसमें डालें और उसको मेजर करें मृदा परीक्षक की मदद से। उसके बाद सॉइल को 10 ग्राम वे कर लें बीकर में और उसमें 20 ml डिस्टिल वाटर डाल के 10 मिनट तक इंटरमिनेट स्टीयरिंग करें और उसके बाद पीएच प्रॉब से रीडिंग लें। पीएच मेजर करने के बाद प्रॉब को निकालें और डिस्टिल वाटर से अच्छे से साफ करके उसको टिश्यू पेपर से वाइप करें और हमेशा इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर से अच्छे से वॉश करके ही अगले सैंपल में डालें। पीएच मेजर करने के बाद उसी सैंपल से ईसी मेजर करना है। उसके लिए सैंपल को 10 मिनट तक इस स्थिति में छोड़ दें। उसके बाद आप ईसी प्रॉब को लें और उसको मृदा परीक्षक से कनेक्ट करें। अब हम मृदा परीक्षक के स्क्रीन में दिए गए ईसी पैरामीटर पर कर्सर को लाएंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट फार्मर पे जाएंगे, उसको भी एंटर करेंगे और ईसी मेजर करेंगे सॉइल का। इस सॉइल का ईसी 0.33 मिलीसाइमन पर सेंटीमीटर है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन मेजर करने के लिए 0.5 mm सीव से छानी गई सॉइल को लें और 0.5 ग्राम सॉइल को बीकर में ट्रांसफर करें। इसके बाद 4 ml सॉल्यूशन को बॉटल नंबर 4 से सिरिंज की सहायता से लें और बीकर में ऐड करें। इसके बाद 8 ml बॉटल नंबर 5 से लें और उसको ध्यानपूर्वक ऐड करें। इस बात का ध्यान रखें कि बॉटल नंबर 5 में एसिड है, इसलिए प्रिकॉशन लें जब उस एसिड को ऐड करें। उसके बाद बीकर को आधे घंटे तक छोड़ दें। इसके पश्चात उसमें 38 ml डिस्टिल वाटर डाल दें और इसके बाद उसको फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद सॉल्यूशन को क्यूवेट में लें। आपको जो भी पैरामीटर सेलेक्ट करना हो वो मृदा परीक्षक पे पहले सेलेक्ट करके एंटर कर लें। उसके बाद फार्मर को सेलेक्ट करके एंटर कर लें। उसके बाद डिस्टिल वाटर को डाल के इंस्ट्रूमेंट को 0 सेट करें। 0 सेट करने के बाद जो ब्लैंक होगा उसको क्यूवेट में डाल के उसको प्लेस करें और एंटर करें। तब इंस्ट्रूमेंट बोलेगा पुट द सैंपल एंड एंटर और तब आप अपने सैंपल सॉल्यूशन को फिर क्यूवेट में डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आपके सॉइल का एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा। सॉइल फास्फोरस का एस्टिमेशन करेंगे और इसके लिए सबसे पहले 1 ग्राम सॉइल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लें और उसमें बॉटल नंबर 6 से 1 पिंच चारकोल डालें। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो सॉइल आपने लिया है उसका पीएच क्या है। अगर पीएच सॉइल का मोर देन 6 है तो उसमें बॉटल नंबर 7 से 20 ml रिएजेंट डालें और आधे घंटे शेकिंग करें। अगर आपके सॉइल का पीएच लेस देन 6 है तो बॉटल नंबर 8 से 10 ml सॉल्यूशन डालें और उसको 5 मिनट शेकिंग करें। शेकिंग के बाद दोनों सॉल्यूशंस को आपको फिल्टर करना है और फिल्टर करने के बाद जो आपको क्लियर फिल्ट्रेट मिलता है उसमें से 5 ml लें। ये प्रोसीजर आपको ब्लैंक में और सॉइल में दोनों में रिपीट करना है।
क्लियर फिल्ट्रेट लेने के बाद उस 5 ml में आपको बॉटल नंबर 9 से 1 ml ऐड करना है। अगर आपके सॉइल का pH लेस देन 6 है तो बॉटल नंबर 9 से सोल्यूशन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बॉटल नंबर 10 से 0.264 ग्राम पाउडर एक 50 ml ड्राई बीकर में वे कर लें और उसके बाद 50 ml मेजरिंग सिलेंडर की मदद से 50 ml सोल्यूशन बॉटल नंबर 11 से ले लें और उस बीकर में डाल के पाउडर को अच्छी तरीके से ग्लास रॉड की मदद से डिज़ोल्व कर लें। अब इस सोल्यूशन में से 4 ml सीरिंज की सहायता से लें और जो हमारा इनिशियल सॉइल फिल्ट्रेट था उसमें ऐड करें। अब उसके बाद कलर डेवलप होने के लिए इसमें 25 ml तक डिस्टिल वाटर को ऐड करके वॉल्यूम बना लें। इसका कलर ब्लू होगा और उसकी रीडिंग मृदा परीक्षक से ले लें। आज हम सॉइल अवेलेबल पोटेशियम करेंगे। इसके लिए पहले 2 ग्राम सॉइल 50 ml सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लें और एक ब्लैंक ले लें जो कि विदाउट सॉइल होगा। इसके बाद इसमें 10 ml सोल्यूशन बॉटल नंबर 12 से मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से ऐड करें। अब इस सोल्यूशन को शेक करें 5 मिनट तक। 5 मिनट शेक करने के बाद इसे फिल्टर कर लें और फिल्ट्रेट से 1 ml सीरिंज की सहायता से दूसरे सेंट्रीफ्यूज में ले लें। अब एक फ्रेश सोल्यूशन बनाना है जिसको कि हम सी कहेंगे। इसके लिए 40 ml सोल्यूशन बॉटल नंबर 13 से लेंगे एक बीकर में और उसी बीकर में बॉटल नंबर 15 से 20 ml सोल्यूशन ऐड करेंगे। हमें इसमें एक और फ्रेश सोल्यूशन बनाना है जिसको हम डी कहेंगे। इसके लिए 2.5 ग्राम पाउडर बॉटल नंबर 16 से लेंगे और उसमें 2 ml सोल्यूशन सिरिंज की सहायता से बॉटल नंबर 14 से ऐड करेंगे। अब उसमें 50 ml तक डिस्टिल्ड वाटर डाल के वॉल्यूम बनाएंगे। अब हमारे पास इस तरीके से सॉल्यूशन सी और डी तैयार हो गया है। अब जो फिल्ट्रेट हमने लिया था पहले 1 ml, अब उसमें 2 ml सॉल्यूशन सी से डालेंगे और 1 ml सॉल्यूशन डी से डालेंगे। उसके बाद उस सॉल्यूशन को 15 मिनट तक छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम टोटल 10 ml तक डिस्टिल वाटर से बना लेंगे। इसी तरीके से आपको ब्लैंक भी प्रिपेयर करना है। आपको जो भी पैरामीटर सेलेक्ट करना हो वो मृदा परीक्षक पे पहले सेलेक्ट करके एंटर कर लें। उसके बाद फार्मर को सेलेक्ट करके एंटर कर लें। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर को डाल के इंस्ट्रूमेंट को 0 सेट करें। 0 सेट करने के बाद जो ब्लैंक होगा उसको क्यूवेट में डाल के उसको प्लेस करें और एंटर करें। तब इंस्ट्रूमेंट बोलेगा पुट द सैंपल एंड एंटर। अब इसके बाद इसका अवेलेबल पोटेशियम मृदा परीक्षक से ले लेंगे और तब आप अपने सैंपल सॉल्यूशन को फिर क्यूवेट में डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आपके सॉइल का एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम अवेलेबल सल्फर करेंगे। इसके लिए 2 ग्राम सॉयल 50 ml के सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लें और इसी तरीके से एक ब्लैंक जो कि विदाउट सॉयल ले लें। अब बॉटल नंबर 17 से 10 ml सोल्यूशन मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से सॉयल और ब्लैंक में डाल दें और इसको आधे घंटे तक शेकर पर शेक करें। शेक करने के बाद इसको फिल्टर करें।
अब फिल्टर करने के बाद इसमें से 5 ml फिल्ट्रेट सॉल्यूशन दूसरे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सिरिंज की सहायता से लें। अब हम बॉटल नंबर 18 से 1 ml सिरिंज की सहायता से सॉल्यूशन लेंगे और उसको फिल्ट्रेट में डालेंगे। इसके बाद बॉटल नंबर 19 से 0.5 ग्राम वे करके सैंपल में डालेंगे और अच्छे से शेक करेंगे। इसके बाद इस सॉल्यूशन को 10 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे डिस्टिल वाटर से। अब उसके बाद कैप लगा के अच्छे से शेक कर लेंगे और इस सॉल्यूशन को 3 मिनट तक छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद इस सॉल्यूशन को हम क्यूवेट में ले लेंगे और मृदा परीक्षक पे रीड कर लेंगे। अब हम अवेलेबल जिंक करेंगे। इसके लिए 10 ग्राम सॉइल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेंगे और इसी तरीके से एक ब्लैंक लेंगे जो कि विदाउट सॉइल सैंपल होगा। अब उसमें बॉटल नंबर 12 से 20 ml सॉल्यूशन मेशरिंग सिलेंडर की मदद से ऐड करेंगे और इस सॉल्यूशन को हम शेकर पर 5 मिनट तक शेक करेंगे। 5 मिनट शेकिंग के बाद इसको आप फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर कर लें और इस फिल्ट्रेट से आपको 5 ml सिरिंज की मदद से दूसरे सेंट्रीफ्यूज में ट्रांसफर कर लें। अब इसमें बॉटल नंबर 20 से 2 ml सॉल्यूशन ट्रांसफर कर लें। उसके बाद बॉटल नंबर 21 से 1 ml सॉल्यूशन ट्रांसफर कर लें। बॉटल नंबर 22 से 1 ml सॉल्यूशन ट्रांसफर कर लें। बॉटल नंबर 23 से 1 ml सॉल्यूशन ट्रांसफर कर लें। बॉटल नंबर 24 से 3 ड्रॉप रिएजेंट फिल्ट्रेट में ऐड कर लें। बॉटल नंबर 25 से 1 ml सॉल्यूशन फिल्ट्रेट में ऐड कर लें। अब हम इसके लिए एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाएंगे जिसके लिए 0.02 ग्राम पाउडर बॉटल नंबर 26 से एक बीकर में लेंगे और 100 ml सॉल्यूशन बॉटल नंबर 27 से लेंगे और इसे अच्छी तरीके से ग्लास रॉड की सहायता से मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद इसको फिल्टर कर लेंगे। अब इस फिल्टर्ड सॉल्यूशन को एक एम्बर या डार्क कलर बॉटल जो कि मृदा परीक्षक के साथ दिया गया है उसमें डाल के स्टोर करेंगे और इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आप जिंक कर रहे हो तब ये सॉल्यूशन फ्रेश ही बनाएं। अब हमने जो फ्रेश सॉल्यूशन डार्क बॉटल में बना लिया है उसमें से 2 ml लें और फिल्ट्रेट में ऐड कर लें। अब इसके वॉल्यूम को 25 ml तक बनाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके पश्चात इसमें एक पिंक कलर डेवलप होगा और उस पिंक कलर को मृदा परीक्षक से रीड कर लें। आपको जो भी पैरामीटर सेलेक्ट करना हो वो मृदा परीक्षक पे पहले सेलेक्ट करके एंटर कर लें। उसके बाद फार्मर को सेलेक्ट करके एंटर कर लें। उसके बाद डिस्टिल वाटर को डाल के इंस्ट्रूमेंट को 0 सेट करें। 0 सेट करने के बाद जो ब्लैंक होगा उसको क्यूवेट में डाल के उसको प्लेस करें और एंटर करें। तब इंस्ट्रूमेंट बोलेगा पुट द सैंपल एंड एंटर और तब आप अपने सैंपल सॉल्यूशन को फिर क्यूवेट में डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आपके सॉइल का एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम अवेलेबल बोरोन करेंगे। इसके लिए 5 ग्राम सॉयल एक कोनिकल फ्लास्क में ले लें और इसी तरीके से एक ब्लैंक लें जो कि विदाउट सॉयल है। इसमें 28 बॉटल नंबर से 20 ml सॉल्यूशन ऐड करेंगे और इसके बाद इसी में बॉटल नंबर 6 से चारकोल पाउडर 0.2 ग्राम ऐड करेंगे। अब इस पूरे कंटेंट को हम हॉट प्लेट पे बॉईल करने के लिए रखेंगे। एक बार बॉइलिंग शुरू हो जाने के बाद इसको 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसके बाद सैंपल को बाहर उतार के रखेंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे और फिल्ट्रेट से 1 ml सिरिंज की सहायता से दूसरे सेंट्रीफ्यूज में ले लें। फिल्टर करने के बाद इसमें से 1 ml कोनिकल फ्लास्क में लेंगे
अब इसे हम ठंडा कर लेंगे और फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद 1 ml सिरिंज की सहायता से बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें एक फ्रेश सोल्यूशन बनाएंगे। इसके लिए एक बीकर में 0.04 ग्राम बॉटल नंबर 29 से लें। अब बॉटल नंबर 30 से 5 ग्राम पाउडर उसी बीकर में डाल दें। अब उसी बीकर में बॉटल नंबर 31 से 100 ml सोल्यूशन डालें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब ये जो फ्रेश सोल्यूशन बना है इसको डार्क कलर बॉटल या एम्बर कलर बॉटल जो कि मृदा परीक्षक के साथ दिया हुआ है उसमें स्टोर करें। अब जो प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है उसमें से 4 ml सोल्यूशन लें और जो कि 1 ml फिल्ट्रेट हमने पहले कलेक्ट करके रखा था उसमें ऐड कर लें। अब इसके बाद इसको फिर से हॉट प्लेट पर गर्म होने के लिए रखें और तब तक गर्म करें जब तक ये इवॉपरेट ना हो जाए। इवॉपरेट होने के बाद इसको कूल कर लें और इसमें 25 ml सोल्यूशन बॉटल नंबर 31 से ऐड कर लें। आपको जो भी पैरामीटर सेलेक्ट करना हो वो मृदा परीक्षक पे पहले सेलेक्ट करके एंटर कर लें। उसके बाद फार्मर को सेलेक्ट करके एंटर कर लें। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर को डाल के इंस्ट्रूमेंट को 0 सेट करें। 0 सेट करने के बाद जो ब्लैंक होगा उसको क्यूवेट में डाल के उसको प्लेस करें और एंटर करें। तब इंस्ट्रूमेंट बोलेगा पुट द सैंपल एंड एंटर और तब आप अपने सैंपल सॉल्यूशन को फिर क्यूवेट में डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आपके सॉइल का एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम सॉइल अवेलेबल आयन मेजर करेंगे। इसके लिए 10 ग्राम सॉइल एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लें और इसी तरीके से एक ब्लैंक जो कि विदाउट सॉइल लेंगे। अब इसमें बॉटल नंबर 32 से 20 ml सोल्यूशन मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से ऐड करेंगे और इस सोल्यूशन को 2 घंटे तक शेकर पर शेक करेंगे। शेकर पर शेक करने के बाद इस सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद इसमें से 5 ml सोल्यूशन दूसरे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेंगे। अब हम इस फिल्ट्रेट में बॉटल नंबर 23 से 1 ml सोल्यूशन ऐड करेंगे। अब बॉटल नंबर 33 से 1 ml सोल्यूशन फिल्ट्रेट में डालेंगे। अब इसके बाद बॉटल नंबर 34 से 2 ml सोल्यूशन इसमें डालेंगे। अब हम इसमें बॉटल नंबर 35 से 0.5 ml सिरिंज की सहायता से फिल्ट्रेट में सोल्यूशन को ऐड करेंगे। अब इस फिल्ट्रेट का टोटल वॉल्यूम 20 ml तक डिस्टिल्ड वाटर की मदद से बना लेंगे। अब इसको कैप कर लेंगे और अच्छे से शेक कर लेंगे। इसके बाद इसकी रीडिंग मृदा परीक्षक से ले लेंगे। मैं इस मृदा परीक्षक लघु प्रयोगशाला के विकास से जुड़ी ICAR भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल की टीम को मुबारकबाद देता हूं। इस प्रोजेक्ट में हमारे सहयोगी नागार्जुन एग्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को भी इस लघु प्रयोगशाला के विकास पर बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मृदा परीक्षक हमारे देश के सॉइल हेल्थ परीक्षण कार्यक्रम में विशेष योगदान देगा। हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।